So hello student, in this video we will see how final account shows subscription item in it or how subscription is recorded in final account. See, final accounts are three: receipt and payment account, income and expenditure account, and balance sheet, which is a position statement. Why I was laughing, there is a reason. I am recording this video third time. There was failure two time. Now this time I hope this video will be successfully recorded and it will reach to you. What kind of difficulty, what nature of difficulties we are facing, I can't mention them in this short video. But remember that it's very difficult for a teacher to record videos, to edit it and to submit it without any fault. In this time, which is very crucial for all of us because we are isolated from each other but we have to find the ways, we have to pave the path how education can continue. It should continue, and I know only because of your efforts you will be able to learn something in this period also. What happens, there was some discussion with some of the colleagues, some of the friends. They told me that do you remember that students are not ready to learn or study even during the classroom? How they will respond to the videos, or we can say, or they were saying that how they will respond to your instruction given by this kind of media. So this types of thought is a pessimistic thought. I don't believe in that. I know that whosoever is motivated person, having motivation, inner desire, has something, some aim in the life to achieve something great, they won't rest, because if you are in rest na, your progress will stop. यदि आप आराम करेंगे, यदि आप अपने टाइम को सोचेंगे कि बढ़िया है, हमें बचे रहना है और इसी बहाने हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ये आप बहुत अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं. तो मेरा संदेश यही है इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी आपको क्विज या आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उनको बहुत ही सिंसेरिटी के साथ आप अपना डिवोशन शो करिए, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी हम बहुत ही स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं. स्लो क्यों? क्योंकि वीडियोस के माध्यम से और एक्चुअल क्लासरूम में डिफरेंस है. प्रैक्टिकली आप समझ रहे होंगे. आपको घर में हो सकता है एक माहौल ना मिल पा रहा हो. मुझे खुद एक डिफ़िकल्टी है एक वीडियो के लिए कि आइसोलेटेड प्लेस ढूंढने, एक स्टूडियो सेट करना इस तरह का जिसमें एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो पाए, बट फिर भी एफर्ट किया जा रहा है. तो आई होप दैट ऑन योर पार्ट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड what is the difficulty of this time and how we should cooperate each other so that we can sail through this difficult time. So now we are coming to the video. In this video we will see how subscription item is recorded in final account. There are three final account: receipt and payment records all receipts on this debit side, all payment on credit side. कैश में जितना भी रिसीव होगा पैसा वो इधर आएगा. अब कैश में कैश तो नहीं मिलता ना, किसी न किसी हेड से मिलेगा. आपको कोई भी पैसे देगा तो बताएगा ना कि मैं इसलिए आपको कैश दे रहा हूँ. तो वैसे ही बहुत सारे हेड्स हैं. सब्सक्रिप्शन में कितना कैश मिला, स्पोर्ट्स मटेरियल सेल करने से कितना कैश आया, इंटरेस्ट से कितना कैश आया, है ना. तो ये सब आपको क्या रिसीट के सोर्सेस पता रहेंगे. ऐसे ही पेमेंट के कौन कौन से हेड में पेमेंट हुआ, फर्नीचर के लिए कितना पेमेंट हुआ, बुक्स के लिए कितना पेमेंट हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए कितना पेमेंट हुआ. जिस नेचर का क्लब है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह के उनके रिसीट्स होंगे, उस तरह के उनके पेमेंट्स होंगे. ठीक है. तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी फाइनल अकाउंट है. कैश बुक के जैसा ही है, लेकिन कैश बुक नहीं है. क्यों नहीं है? कैश बुक जर्नल है. कैश बुक डेली रिकॉर्ड होता है. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फाइनल अकाउंट है. दैट्स वाई इट इज़ रिटन फॉर द ईयर एंड डेट. ईयर में एक बार रिकॉर्ड होता है, मेंटेन होता है. उसके बाद चलिए अब हमें क्या दिया रहता है और हमसे क्या एक्सपेक्टेड होता है. इस सिलेबस में हमें दिया रहता है नॉर्मली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और एक्सपेक्टेड होता है कि आप बनाइए उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है. बैलेंस शीट क्या होता है? आपको लाइबिलिटीज़ का और एसेट्स का स्टेटमेंट देना है, दोनों इक्वल होगा. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? आपको एक रिजल्ट बताना है कि इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से
तो आपका रिजल्ट है सरप्लस आ गया। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, तो आपका रिजल्ट है डेफिसिट आ गया। कैपिटल फंड को सरप्लस इंक्रीज करेगा, डेफिसिट डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो हमारे क्वेश्चन में रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन दिया है, हम ये देख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन को फाइनल अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। 1, 2, 3 और एक 4, 4 इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1, 2, 3 एंड 4। 1 में लिखा है कि 2019 का सब्सक्रिप्शन 5000 मिला कब? 2020 में। हमारा जो ईयर रन कर रहा है ना, हम जिसके लिए रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो है 2020, और हमने कैलेंडर ईयर चूज़ किया है ताकि समझने में थोड़ा आसान रहे। तो 2020 के जनवरी से ये स्टार्ट होगा, 31 को एंड हो जाएगा। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक हमको 1,95,000 रुपये मिले, जिसमें 5000 है 2019 के लास्ट ईयर के, 2020 के हैं 180, 1,80,000, और 2021 के लिए मिला 10,000 रुपये। ठीक है, आपको मिला है 3 तरह से कैश सब्सक्रिप्शन के नाम से। 19 का सब्सक्रिप्शन, 20 का सब्सक्रिप्शन, 21 का सब्सक्रिप्शन। अब मुझे बताइए आप, 2019 का सब्सक्रिप्शन कब मिलना चाहिए था? 2019 में ना, मिला कब है? 2020 में। ठीक है, मिला है 2020 में, है 2019 का, तो तब का था तो तभी मिलना था, तभी नहीं मिल पाया इसलिए अब मिला है। ठीक है, तो मिला है तो हमने ले लिया, बट वो हमारी इनकम नहीं है। क्यों? लास्ट ईयर मिलना चाहिए था, यानी लास्ट ईयर वो क्या था? आउटस्टैंडिंग। कब मिला? इस साल। ठीक है, ले लिया, लेकिन इनकम नहीं शो करेंगे ना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर का इनकम। ठीक है, मिल गया, ऐड हो गया हमारे टोटल में, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 के लिए कितना मिला? 180। ठीक है, 20 के लिए मिला है तो 20 का ही होगा। हम देखेंगे 20 का ही है कि कोई और इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब 2021 के लिए कितना मिल गया ये तो क्लियर है। 2021 के लिए 2020 में 10,000 किसी ने दे दिए, कुछ मेंबर्स ने दे दिए, उन्होंने दे दिया, एक्टिव है मेंबर्स। ठीक है, हमने रिसीव भी कर लिया, लेकिन ये हमारी इनकम नहीं है क्योंकि इसका रिलेशन 21 से है। तो 21 से इसलिए इनकम एडवांस में मिल गई हमको मेंबर से, हम इसको शो करेंगे एज अ लाइबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। चौथी इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग है, अभी भी मिलना है उनसे, लेना है हमको किसको? क्लब को। अभी भी क्लब को मेंबर से कितना लेना है? 2020 के लिए 20,000, यानी जो 20,000 है ना, ये इस साल के लिए क्या है? इनकम है, बट कैश में आया नहीं आया तो हम इसको अकाउंट कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, और इसको एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट ईयर 21 में मिल जाए। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कैसे होगा? ठीक है, देखिए आप रिकॉर्ड कैसे होगा। टोटल जो 1,95,000 है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, कहाँ पे? इनकम साइड में। आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप 2020 बस का ही रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम 2020 के लिए फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं देख रहे हैं। फिलहाल हम टोटल समेटिव स्कीम देख रहे हैं कि क्या करते हैं इन टोटलिटी में एडजस्टमेंट कैसे होती है। 1,95,000 जो तीनों का टोटल है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। किस साइड? इनकम ना, जो सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है ना, पैसे मिल रहे हैं, तो किस साइड आएगा इनकम एक्सपेंडिचर की? इनकम साइड। डेबिट साइड होता है एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड होता है इनकम, बट नाम क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना मिला है पैसा? 1,95,000। आप मेरी बात आप समझिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड होता है एक्रूअल बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? एक्रूअल, मतलब ट्रांजैक्शंस का इवेंट उस टाइम के साथ मैच करना चाहिए। ट्रांजैक्शन का जो इवेंट है वो उस ईयर में होना चाहिए, है ना। नहीं हुआ तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब 2020 के लिए कोई इनकम है, उसका इवेंट हैपन है, बट कैश नहीं मिला है, कैश का यदि ट्रीटमेंट उसके साथ नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा या आउटस्टैंडिंग इनकम। जैसे कि कुछ कैश नहीं मिला 31 दिसंबर में 2020 में, हम उसको इनकम ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि नहीं मिला ना, बट इनकम तो है, उसका ट्रांजैक्शन, उसका जो ऑब्लिगेशन है वो पास हो गया है। हमें एक टाइटल मिल गया कि वो हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि 2020 ख़त्म हो रहा है लेकिन कैश लोगों ने नहीं दिया, तो उसको हम इनकम मान लेंगे। हमने किसी को कैश नहीं दिया तो उसको हम एक्सपेंस मान लेंगे, क्योंकि हम फॉलो क्या करते हैं? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, एक्रूअल बेसिस पे बनता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश बेसिस पे बनता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपके आंसर का पार्ट है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन को यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड किया,
2019 का 5,000 रुपये 2019 के लिए था, मिला लेकिन 2020 में है, तो यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस। और लास्ट ईयर का इस साल क्यों मिला? क्योंकि वो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तभी नहीं दिया लोगों ने, अभी दिया। तो हमें क्या कर देना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देना है आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब 2019 कितना 5,000 माइनस कर दिया, कितना आया 195 में 5 गया। तो अब 21 का कितना है 10,000। 21 तो अभी आया नहीं, 2021 आएगा, ठीक है। 2021 का जो 10,000 मिला है ना, वो 2021 के लिए है, 20 में मिल चुका है, बस मिल गया तो ठीक है, हमने ले लिया कैश। बट उसको ट्रीट कब करेंगे इनकम? 2021 में। तो अभी क्या कर देते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस कर देंगे, लिखेंगे एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मतलब 2021 कितना 10,000। अब आपकी सब्सक्रिप्शन कितनी आ गई 180। इस 180 में आप देखेंगे चौथी इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2020 के लिए, रनिंग ईयर के लिए, इस वर्ष के लिए जिसके लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, वो 20,000 है। तो इस साल 20,000 इनकम है, बट मिली नहीं है। मिली नहीं है तो क्या हुआ, इनकम तो है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी हम अपने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर लेंगे, भले ही नहीं मिला है, प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना 20,000, और हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम हो जाएगी टोटल 2 लाख रुपए। ये आपके इनकम साइड में दिखाई देगा, कितना 2 लाख। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होता है एडवांस में मिली हुई सब्सक्रिप्शन। कब के लिए एडवांस में? नेक्स्ट ईयर के लिए, 2021 के लिए कितना मिला है 10,000, जो यहाँ से माइनस हुआ वो यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी साइड। और 2020 में 20,000 रुपये लोगों ने नहीं दिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, अभी नहीं मिला है तो क्या कहलाएगा, एसेट। रिसीव करना है, इनकम है, रिसीवेबल है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मिलेगा, उसको हम एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो रिसीव होना होता है, बेनिफिट जिससे हमको होना होता है, वो हमारी एसेट से। कितना है वो 20,000। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, इतनी ही इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे, पूरी बैलेंस शीट तो बना नहीं सकते, पूरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बना नहीं सकते, जितनी इन्फॉर्मेशन है उतना इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो मुझे आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। फर्दर अपडेट्स, फर्दर वीडियोस इसके ऊपर और बनाएंगे, और क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, और आपको भी क्वेश्चन आंसर्स देंगे। बट आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे, क्योंकि यहाँ से आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप पीछे होते जाएंगे। आप एक बार सब्सक्रिप्शन में देख लीजिए, प्लस होता है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस वर्ष जो मिला नहीं है, लेकिन वो इनकम तो था, मिला नहीं है, इसलिए उसको ऐड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का एडवांस, पिछले साल लोगों ने एडवांस में दिया था इनकम सब्सक्रिप्शन, क्यों? इस साल की थी वो, दिया था पिछले साल, तो इस साल क्या कर लेना चाहिए, प्लस ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। माइनस क्या करना चाहिए, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो पैसा था, सब्सक्रिप्शन था, पिछले साल लोगों ने नहीं दिया था, कब दिया उसको, इस साल दिया, तो इस साल दिया, इसलिए इसको माइनस कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका रिलेशन तो पिछले साल से है, मिला है इसलिए यहाँ वो आ गया है, ठीक है। जैसे यहाँ 5,000 आ गया था। एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल का जो एडवांस है वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का एडवांस, नेक्स्ट ईयर की इनकम है ना, मिली अभी है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, और आपको, मुझे लगता है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट हूँ, तो आप वीडियो को स्लो करके देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, और कोशिश करिए कि आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।